Assalamu alaikum students. Hena Usman with your English lecture. We have started our Unit 2 Environment Nature, and we have just read starting of the text chapter number 2.1, It's Country for Me. We have started the story, and I told you that in the story not very much explanation is required. You just have to read it as a story and memorize all the sequence of the events and important details for your MCQs. So let's start. Joel attends public school in Scales Mount in a split level brick building with 235 other grade school and high school pupils. Which school Joel was going? It was Scales Mount in a split level. Split level basically split means divided. Brick block of clay को कहते हैं. तो basically it's a split level brick building. इसके different portions हैं. 235 other grade school and high school pupils. The total strength of that school is 235. About half the students are farmers. They are also doing farming. This year, Joel will graduate from 8th grade and begin 9th. He will pass out his 8th class and he will go in 9th class. But his class will not get larger, but the strength will not get more. More students will not be added except for 3 foster children who came and left. Foster children, those who have not the parents and cared by someone else. Joel has been with the same 19 kids since first grade. पहली क्लास से लेके अभी तक उसके साथ वही सेम 19 बच्चे थे और कुछ बच्चे सिर्फ थोड़े से ऐसे थे जो 3 फॉस्टर चिल्ड्रन थे जो आते जाते रहते थे, लेकिन 19 परमानेंट बच्चे थे शुरू से. सो ये सारे आपके MCQs हैं. नेम ऑफ द स्कूल, स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, हाउ मेनी फॉस्टर चिल्ड्रन वर देयर, हाउ मच स्टूडेंट्स were with them from the grade 1. I know every kid in practically the whole school, he says. He has very good observation, communication, and he was familiar with each and every child. Some of those guys in schools on TV don't even know the people in their own class. Now it's a satire. Satire means tanz karna, taunt karna on the modern lifestyle on the city school students that they do not even know about their neighbors. कि उनको तो शायद अपनी क्लास के बच्चों, अपने नेबर्स के बारे में भी कुछ नहीं पता होता, और मुझे अपने स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के बारे में पता है. पूरे स्कूल की वो बात कर रहा है. प्रैक्टिकली द होल स्कूल, एंड द होल स्कूल हैड 235 स्टूडेंट्स. सो ही इज़ टेलिंग अस अ डिफरेंस ऑल्सो दैट इन city life we are more you can say that antisocial, or we are not communicating with people, we are not concerned with other people, we are self-centered and we are not caring other people. हमें दूसरे लोगों के बारे में जांचने, जानने या तजस्सुस हमें होता ही नहीं है. हम बस अपने आप में मस्त रहते हैं. तो वो क्योंकि कस्बे में रहता है, गांव में रहता है, फार्म साइड पे दही इलाके में रहता है, वो कहता मैं तो अपने स्कूल के सारे बच्चों को जानता हूँ. और वो कहता है टीवी पे जो बच्चे दिखाए जाते हैं, जो मशहूर होते हैं, वो तो शायद अपने क्लास के बच्चों को भी ना जानते हों. जोएल इज़ अ गुड स्टूडेंट दो रिलक्टेंट टू डिस्कस इट. रिलक्टेंट, हेजिटेंट, अनविलिंग. वो अपनी कामयाबियों की बात नहीं करता. या आई गेस आई पुल मोस्टली एज सम बी. ज़्यादातर ए ग्रेड लेता है, कभी कभी बी. इन नेशनल टेस्टिंग, उनकी जो कोई नेशनल टेस्ट हुआ एक बड़े लेवल पे, जोएल स्कोर्ड एन ओवरऑल 99%. उसमें उसने 99% स्कोर किया, मीनिंग दैट ओनली 1% ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड हायर. यानी वो 99% स्कोर कर गया था, उससे सिर्फ 1% बच्चे थे जो उससे आगे थे और उन्होंने 100% स्कोर किया. सो मीन्स ही वॉज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट. हिज स्टडीज़ आर टिपिकल, ट्रेडिशनल.
कॉमन एज जैसे एक ही तरीके से सबको पढ़ाया जा रहा होता है, उसकी स्टडीज़ भी वैसी थी. एनी 8th ग्रेडर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में किसी भी 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है. वी आर डूइंग परसेंट इन मैथमेटिक्स, नाउ ही इज़ टेलिंग व्हाट ही इज़ डूइंग एट स्कूल. मैथमेटिक्स में वो परसेंटेज सीख रहे हैं. इंग्लिश फॉरगेट इट, डोंट टॉक अबाउट इंग्लिश, माइट बी ही डज़ नॉट लाइक इंग्लिश और एनीथिंग कैन बी. वो कहता है इंग्लिश को तो भूल ही जाएं. इन हिस्ट्री वी आर अप टू FDR. FDR बेसिकली Franklin Delano Roosevelt, the 32nd president of USA. तो वो कह रहा है हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम 32nd प्रेसिडेंट तक पढ़ चुके हैं. साइंस वी डू एक्सपेरिमेंट्स लाइक टेकिंग दिस केमिकल HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड ब्लोइंग अप पीसेस ऑफ चॉक. यानी केमिस्ट्री में वो किसी भी तरह के कोई तजर्बे कर रहे होंगे कि चॉक के पीसेस को कैसे ब्लो किया जाता है, कैसे बर्स्ट किया जाता है केमिकल यूजेज वगैरह करके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिज स्कूल. बट व्हेन द स्कूल बस ड्रॉप्स जोएल ऑफ एंड ही रन्स अप द क्वार्टर माइल लेन टू हिज फार्म हाउस, जब वो उसकी बस उसको ड्रॉप करती है और वो अभी अपने फार्म हाउस से तकरीबन एक क्वार्टर माइल, चौथाई मील दूर होता है, स्लिप्स आउट ऑफ हिज स्नीकर्स. स्नीकर्स आपके जो थोड़े सॉफ्ट शूज़ होते हैं, नॉर्मली ये मेड ऑफ एनी क्लोथ, नरम चमड़े के बने हुए होते हैं. तो वो कहता मैं अपने स्नीकर्स उतार लेता हूँ. एंड पुल्स ऑन हिज बूट्स. बूट्स आर हार्ड, हैविंग ऑफ हार्ड मटीरियल एंड यूज फॉर द हैवी वर्क. सख्त चमड़े के जो बूट होते हैं. देन हिज लाइफ इज़ नो लॉन्गर टिपिकल ऑफ एन एवरेज टीनेजर. अब एक आम नौ उम्र लड़के जैसी ज़िंदगी नहीं है उसकी. जैसे ही वो अपने जूते चेंज करता है, इट मीन्स दैट ऑल अटायर, ऑल एटमॉस्फेयर, ऑल वर्क इज़ ऑल्सो चेंज फॉर हिम. उसका सारे का सारा काम ही चेंज हो जाता है जैसे ही वो अपने जूतों को चेंज कर लेता है. तो सो नाउ ही इज़ टेलिंग व्हाट हैपन्स जब उसकी बस उसको ड्रॉप करके जाती है. So he says that slips out of his sneakers and pulls on his boots. Sneakers basically sports shoes होते हैं और boots जो होते हैं वो ज़रा हार्ड और सख्त होते हैं. Slips out, slides out, comes out, उतार देता है. Pulls on, wear, पहन लेता है और फिर उसकी लाइफ जो है वो टोटल चेंज हो जाती है. His footgear, thick clothing for foot or shoes. यानी आपका जो फुट गियर होता है इज़ द क्ल्यू. उसने अब पैरों में जो जूते पहन लिए हैं, दैट इज़ अ क्ल्यू, दैट इज़ अ सिग्नल, इंडिकेशन. अब वो इशारा है किस चीज़ का. जोएल वियर्स बूट एवरी डे. जूते तो वो हर रोज़ पहनता है. नो मैटर व्हाट द सीज़न इज़, चाहे कोई भी मौसम हो. दैट इज़ बिकॉज ही डज चोर्स एवरी नाइट आफ्टर स्कूल एंड फॉर सेवरल आवर्स ऑन वीकेंड. हर रोज़ स्कूल से घर जाने के बाद वो हर रात घर के काम करता है और कई घंटे वीकेंड पे भी काम करता है. द चोर्स आर बूट वर्क. बूट वर्क मीन्स हार्ड, हैवी एंड समटाइम डर्टी. तो आपके जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं, जो स्निकर्स हैं, बड़े खूबसूरत कलर्स में अवेलेबल होते हैं. वो पहन के आप किसी फार्म पे तो नहीं जा सकते जिधर मिट्टी है, गीली मिट्टी है, घास है, गंद है. उसमें आपके सारे जूते ख़राब हो जाएंगे. सो यू नीड अ हार्ड स्टफ़ टू वियर ऑन, ताकि आप वो सारा गंदा काम या मेहनत वाला काम जो है वो कर सकें. नाउ हियर यू ऑल्सो कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एंड इन द लाइफ ऑफ जोएल. जोएल इज़ ओनली 13 years old. अब वो 13 साल का बच्चा है. एंड ही इज़ टेलिंग अस अबाउट ऑल हिज रूटीन. वो अपनी सारी रूटीन हमें बता रहा है कि वो क्या क्या काम करता है. वो स्कूल भी जा रहा है और वो एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है और घर वापस आके वो फार्म पे काम करने लगा है. और फार्म का काम कोई आसान काम नहीं होता. अगर हम शहर के बच्चों को देखें, आप लोगों को देखें, तो हाउ मच वर्क यू आर डूइंग और हाउ ईज़िली यू आर गेटिंग टायर्ड. कैसे जल्दी थक जाते हैं. आधी क्लास का BP लो होता है, आपको स्लीपिंग सिकनेस हो रही होती है. मैनी ऑफ द टाइम आपके बहुत सारे फ़िज़िकल इश्यूज़ चल रहे होते हैं. हालांकि आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हार्ड लाइफ भी नहीं है. So being young, you must be energetic and active as well. So अब यहाँ से देखेंगे हम जोएल काम कौन से करता है. The daily chores that Joel does help are to run the farm and to support the family. Joel does
हेल्प आर्ट, जिन कामों में वो मदद करता है वो क्या हैं? रन द फार्म, टू वर्क ऑन फार्म, टू मेक इट इन प्रोसेस, सारे काम फार्म में जो हो रहे होते हैं वो करना, उसको चलाना. सपोर्ट द फैमिली, टू हेल्प द फैमिली. जोएल इज़ अ टीनेजर, बेशक वो नौउम्र लड़का है, बट ही डज़ द वर्क ऑफ एन अडल्ट, लेकिन वो एक बड़े जैसे काम करता है. अनलाइक मोस्ट फैमिलीज़, बहुत सी दूसरी फैमिलीज़ के बरक्स, वेयर द पेरेंट्स अलोन मेक द मनी, जहाँ सिर्फ पेरेंट्स कमाते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में होता है. बेसिकली इन आर पाकिस्तान सोसाइटी there is no concept that children have to work. Parents are earning and children are only spending. Even अगर आपके घर में यूनिवर्सिटी गोइंग भाई बहन भी हैं तो आप देखते हैं कि उनका सारा एक्सपेंस तो आपके घर से फादर ही कर रहे हैं या कोई बड़ा भाई बहन कर रहा है. जो अर्निंग बाय देम सेल्फ इज़ वेरी लेस. हमारे माशरे में ये बहुत कम है. स्कूल लेवल पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप स्कूल में काम भी करें और साथ साथ पढ़ाई भी करें, मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, दे आर बेयरिंग ऑल द एक्सपेंसेस. लेकिन बाहर वेस्ट में आप देखें कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है. वो कहता है दूसरी फैमिलीज़ के बरक्स जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स पैसे कमाते हैं, फार्म फैमिलीज़ वर्क टुगेदर. जो फार्म फैमिलीज़ होती हैं उनमें डिफरेंस होता है. यूनाइटेड स्टेट्स में भी सिटी और रूरल लाइफ में डिफरेंस है, तो शायद सिटी लाइफ में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, लेकिन फार्म लाइफ में पेरेंट्स के साथ बच्चे काम करते हैं. ईच चाइल्ड्स लेबर इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू द फैमिलीज़ वेल बीइंग, इट इज़ एसेंशियल. हर बच्चे, अब उस घर में चाहे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनमें से हर एक का काम करना फैमिली की वेल बीइंग के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, उसके ग्रो करने के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड इट इज़ एसेंशियल और लाजमी है. अहम तो है ही कि आप काम कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लाजमी भी है, आपको काम करना है. इट्स नॉट ऑफ योर चॉइस दैट आई हैव टू डू और नॉट, यू हैव टू. द हॉलैंड्स ऑपरेट अ सेल्फ सफिशेंट फॉर्म. हॉलैंड्स जो हैं वो ऑपरेट, रनिंग, चलाते हैं सेल्फ सफिशेंट इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट फॉर्म है उनका. टिपिकली ऑफ मैनी इन द कॉर्न बेल्ट नेम ऑफ द एरिया, अ प्लेस. ट्रेडिशनली, रिवायती तौर पर, जैसे कॉर्न बेल्ट में जितने भी फार्म्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंट ही हैं. दे रेज लाइव स्टॉक रेज प्रोड्यूस, लाइव स्टॉक कैटल्स, मवेशी, एंड अ फ्यू शीप. ज़्यादातर उनके पास मवेशी हैं और कुछ भेड़ें हैं. इन ईच हर्ड, हर रेवड़ में, दे कीप सम फीमेल्स टू रेप्लेनिश द स्टॉक, रीफिल, रीलोड, रीप्रोड्यूस. उन्होंने फीमेल एनिमल्स भी रखे हुए हैं ताकि उनका स्टॉक बढ़ता रहे. द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स आर सोल्ड फॉर स्लॉटर बुचर, ज़िबा कर दिया जाना. बाकी जो जानवर हैं उनको ज़िबा किया जाता है. एंड लैंड ऑन अमेरिका स्टेबल एज बीफ एंड लैम, और फिर वो भेज दिए जाते हैं अमेरिका में डिफरेंट प्लेसेस में बीफ और लैम की शक्ल में, यानी गोश्त की शक्ल में खाने की टेबल पे पहुंच जाते हैं. The Hollands grow virtually all the food their animals need. Virtually, effectively, practically, मतलब वो ख़ुद उगाते हैं तमाम वो अनाज जो उनके जानवरों की ज़रूरत है. कॉर्न, ओट्स एंड हे, उनके पास ये सारे अनाज जो हैं ये उगाए जा रहे हैं. दे सेल द सरप्लस एक्सेस, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड मोर देन दैट, जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसके बाद जो बच जाए, दैट इज़ कॉल्ड सरप्लस. बोनस के लें, दो मोस्ट ऑफ देयर मनी कम्स फ्रॉम सेलिंग द एनिमल्स देमसेल्व्स. दे सेल द सरप्लस, यानी उनकी ज़रूरत से ज़्यादा जो जानवर हैं वो उनको बेच देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रकम वो बना रहे हैं या जो रकम उनके पास आ रही है वो उनको जानवर बेचने से ही आ रही होती है. तो अब वो बेचते क्या हैं? वो बेचते हैं कॉर्न, ओट्स एंड हे, जो उनकी ज़रूरत और मिकदार से ज़्यादा हो जाता है, यानी अपने मवेशियों को अनाज फराहम करने के बाद जो अनाज बच जाता है वो बेच देते हैं, क्योंकि वैसे उनकी सारी ज़रूरत जो पूरी हो रही है वो एनिमल से ही हो रही है, एनिमल सेलिंग से. टू रन अ फार्म लाइक दिस, इस तरह के फार्म को चलाने के लिए फार्मर्स हैव टू हैव मेनी स्किल्स. फार्मर्स के पास बहुत सारी स्किल होनी चाहिए, महारतें होनी चाहिए.
दे हैव टू बी मशीन ऑपरेटर। अब वो ये सारे नाम बताएगा कि एक फार्म ऑपरेटर को क्या क्या काम आने चाहिए, एक फार्मर को क्या क्या काम आने चाहिए। उसको मशीन ऑपरेटर होना चाहिए, ड्राइविंग इमेंस ह्यूज बिग एंड पावरफुल व्हीकल्स, बड़ी ताकतवर गाड़ियाँ चलानी आनी चाहिए। दे हैव टू बिकम मैकेनिक्स, उनको कारीगर होना चाहिए। रिपेयरिंग देम, ताकि वो अपनी इन मशीनों को ख़ुद ठीक भी कर सकें। हस्बैंडमैन, हाउसमैन, घर के काम काज में मदद करने वाले। रेजिंग लाइफ स्टॉक, मवेशियों को पालने बड़ा करने वाले। वेटरनेरियंस, एनिमल डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर। टेंडिंग देम, लुकिंग आफ्टर देम व्हेन सिक, जब उनके जानवर बीमार हो जाएं तो उनका ध्यान करना। और एग्रीकल्चरिस्ट, माहिर ज़राअत, ग्रोइंग फूड ऑन अ लार्ज स्केल, ताकि वो बड़े पैमाने पर ख़ुराक उगा सकें। एंड बिजनेस पीपल, कारोबारी लोग। मैनेजिंग लाइक जोएल्स फादर, जैसे कि जोएल का जो फादर है वो अपना फार्म मैनेज कर रहा है। अ फार्म ऑपरेशन वर्दी नियरली द $1 million, और वो एक ऐसा फार्म चला रहा है जिसका काम तकरीबन $1 million की प्रोडक्शन है उनके फार्म पे से। तो उसको चलाने के लिए ज़ाहिर है आपको बिज़नेस माइंड भी होना है कि आपने सेलिंग क्या करनी है, आपने प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, आपने मेंटेन कैसे करना है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, जो जानवर आपने रखे हुए हैं उनकी हिफाजत कैसे करनी है, उनका ख्याल कैसे रखना है। सो अ फार्म ऑपरेशन वर्थ नियरली $1 million, एक फार्म का जो टोटल ऑपरेशन है, उसकी रनिंग है, उसको चलाना है, उसकी कॉस्ट $1 million से ज़्यादा होती है। As Joel works on the farm, he is all these workers. This is important. Which qualities, which skills Joel has. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि which skills Joel has, तो आपको ये सारी skills mention करनी है। Joel knew all of them. और इससे ऊपर जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, that is about what sort of farm Hollands have. ये पूरा पैराग्राफ उसका जवाब था कि उनका फार्म किस तरह का है। ये दूसरा पैराग्राफ what skills farmer should have and what skills Joel had, तो ये सारा उसका जवाब है। Yet he is a boy still, लेकिन इसके बावजूद कि उसको ये सारे काम आते हैं वो भी एक लड़का ही है। Like an apprentice trainee, अभी the person who is learning continues to learn new skills, अभी वो नई चीज़ें सीख रहा है। Joel takes his learning seriously, वो अपने सीखने को बहुत संजीदगी से लेता है। Because his goal is to become a farmer, क्योंकि उसका मकसद है किसान बनना। He is extremely alert means vigilant, watchful, observant। alert and watchful, वो बहुत ही चौकन्ना है और बहुत ही करीब से मुशाहिदा करता है चीज़ों का, ध्यान से देखता है। लाइक अ कैट, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह जो चौकस और चौकन्ना होती है। इवन व्हेन नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ चोर, जब वो खुद अमली तौर पर कोई काम नहीं कर रहा होता। जोएल कैन रेडिली आंसर, रेडिली, क्विकली, हैप्पीली, कीनली, तेज़ी से आंसर करता है एनी क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब अगर वो कहीं आइडली बैठा है, सुस्ती से बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा और आसपास काम हो रहा है और आप सडनली उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्या हो रहा है, तो वो आपको एकदम बताएगा कि ये काम हो रहा है। मीन्स मेंटली ही इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व देयर इफ़ नॉट फिजिकली। ही लिसनड एज हिज डैड काउंसल्स अ सीट कस्टमर इन द किचन। अब वो सीख कैसे रहा है? दीज आर द डिफरेंट चैनल्स फ्राम वेयर ही इज़ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, लर्निंग। वो सुनता है बहुत ध्यान से। काउंसल्स, डिस्कस, जब उसके फादर डिस्कस करते हैं, एग्री करते हैं, किसी को मनाते हैं। अ सीट कस्टमर इन द किचन, जो उनका कोई भी बीज ख़रीदने वाला गाहक है, जब वो आता है तो उसको कैसे राज़ी करते हैं, उसको कैसे आमादा करते हैं कि ही हैज़ टू परचेज दिस थिंग, व्हाट बेनिफिट्स इट हैज़। एज हिज ब्रदर टेरी कंसल्ट्स अ वेट अबाउट recent deaths in his hog herd group of pigs, और कैसे उसका जो भाई है टेरी वो कंसल्ट करता है एक वेट के साथ, वेटरनेरियन एनिमल डॉक्टर्स के साथ। उसको वजूहात कैसे बताता है कि उसके पिग्स के ग्रुप ऑफ पिग्स के डेथ्स की बेसिक रीज़न क्या थी, क्योंकि उसको ख़ुद पता है इन सारी चीज़ों का। एज इज़ ओल्डर ब्रदर्स डिस्कस सॉइल प्लानिंग, जैसे उसके बड़े भाई ज़मीन के बारे में, उसकी ज़रखेज़ी के बारे में मनसूबाबंदी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। वाइल दे मेंड अ फेंस, वाइल दे रिपेयर अ फेंस, जब वो रिपेयर करते हैं किसी भी फेंस को। फेंस बेसिकली बैरियर्स होते हैं, रेलिंग होती है,
जब वो किसी भी ऐसी जो भी उन्होंने बाड़ लगाई हुई है उसकी मरम्मत करते हैं, नॉलेज सीम्स टू बी कॉन्स्टेंटली सीपिंग, ऐसा लगता है जैसे इल्म कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली सीपिंग, फ्लोइंग, ऊजिंग, टिकलिंग, रिस रहा है, थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर जा रही हैं ये सारी मालूमात, समटाइम्स फ्लोइंग इनटू जॉयल्स माइंड, और बाज़ औक़ात ये मालूमात इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, दे आर कमिंग आउट, ऐसा लगता है कि वो अब मज़ीद अंदर नहीं जा सकती, ही इज़ फिल, हिज माइंड इज़ फुल ऑफ एवरीथिंग, सो सीपिंग कॉन्स्टेंटली इन हिज माइंड, वो बहुत ग्रेजुअली स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें सीखता जा रहा है। वो हमेशा सवाल नहीं पूछता, मैनी ए टाइम्स ही इज़ ऑब्जर्वेंट, देखता है, मुशाहिदा करता है, सीख लेता है, and his mind is grasping all these things from his environment, from his surrounding, from his elders. This is all for today. Thank you, and you must have to reread this text as a story to learn the incidents. Again, thank you. Stay blessed.